Hello everyone, good morning. Today we are going to start a new chapter that is named The Concert. Now, what do you mean by concert? Concert means a stage show. It could be a musical show, it could be a dance show, it could be any of these. So, this story is about Shanta Rao. Please note Shanta Rao, 1930 2007. She was born in 1930 and she died in 2007. She was a notable dancer from India. She was a dancer from India. She was exponent of Bharatnatyam. Exponent means she was interested in Bharatnatyam and also studied Kathakali and Kuchipudi. Now all these Kathakali and Kuchipudi and Bharatnatyam are dance forms. Just like there is a hip hop dance form, there is Dandi as a dance form, there is a Maharashtrian dance form also. Lavani it is called, I think so. She was recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award. Recipient means she received the Padma Shri and the Sangeet Natak Academy Award. And Kalidas Sanman for music, dance and drama. Sanman means award, excellence. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakhas have been changed. Before we begin the chapter, I would like to show you a clip of Shanta Rao doing the Kathakali dance. Here we go. You can see Shanta Rao's face in close up here. So she's a beautiful female. She's doing various steps of Bharatnatyam, Kathakali, Kuchipudi dance, and she's doing it with a lot of facial expressions. Okay, so coming back to our chapter. One morning in a small apartment in Bombay, so this incident takes place in Mumbai as we call it. A girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Shanmukhananda Auditorium. So Shanmukhanand Auditorium is a very famous place in Mumbai. I think it comes somewhere in Lower Parel or
Marine Drive, no, not Marine Drive, but somewhere in Lower Parel, I think so. So this girl, she was very excited. She was how many years old? 16 years old, and she was excited because Pandit Ravi Shankar was playing at the Shanmukhananda Auditorium. Shh, said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. So there was somebody sleeping on the bed, and she said, shh, shh, keep quiet, like this, pointing out a finger to the person who was sleeping on the bed. You'll wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can. So mommy is saying, keep quiet. You'll wake him up with this noise that you're making, with the excited noise you're making. But the boy on the bed was not asleep. So who was that figure lying on the bed? Sleeping on the bed was the boy. Was a boy. Pandit Ravi Shankar. So that boy, he woke up with excitement and he said, Pandit Ravi Shankar. He said, Pandit Ravi Shankar, the sitar maestro. Sitar maestro. So who was Pandit Ravi Shankar? So he's saying the sitar maestro. Maestro is a genius of in whichever field. So, expert. Maestro means expert. He raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back. He immediately woke up with his elbows and then he fell back on the bed. But his eyes were shining. You know, if I take the name of a favorite film star or favorite cricketer, मैं आपके पसंदीदा क्रिकेटर या फिल्म स्टार या हीरो हीरोइन या म्यूजिशियन का नाम लूँ तो आप कितना एक्साइट हो जाएंगे और आपकी आंखों में एक चमक सी दिखेगी. वैसे इस लड़के के साथ हो रहा था. But his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I've always wanted to hear him and see him. तो वो कहता है कि हमें इनका चांस मिस नहीं करना चाहिए, इस म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का, सितार प्रोग्राम का मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा से उनको सुनने की इच्छा रही है. Lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. लेट जाओ बेटा, लेट जाओ. उसकी मम्मी उसकी तरफ sprang मतलब इमीडिएटली जाके बैठ गई. He actually raised himself up without help. वो इतना एक्साइटेड था, उसने अपने आप को बिना बैलेंस के उठा लिया. अब ये सब पढ़ने से क्या पता चलता है, इसको कुछ तो बीमारी थी, कुछ तो इसका हेल्थ इश्यूज़ था. And she murmured with a catch in her throat and her eyes. Murmured means धीरे से बोला, quietly spoken words. With a catch in her throat and her eyes turned to the idols on a corner shelf. धीरे से उन्होंने कुछ कहा, अपने catch in her throat मतलब आवाज़ अपनी दबाते हुए, और eyes turned to the idols, एक कोने में idols थे, मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ थी कॉर्नर शेल्फ पे. उन्होंने क्या कहा, मरमर क्या किया, एक छोटा सा भगवान से प्रार्थना की, जो वो हमेशा कहती थी, विच शी अटर्ड एंडलेसली. अटर्ड एंडलेसली मीन्स हमेशा कहती थी वो ये. केम अनबिडन टू हर लिप्स. प्रेयर, तो वो एक प्रेयर जो हमेशा कहती थी, वो अनबिडन मतलब बिना किसी के कहे अपने आप मुंह पे आ गया. अनबिडन, इधर वर्ड छुप गया है, इसको फिर से अंडरलाइन करती हूँ. अनबिडन. आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, द बॉय रिपीटेड. तो लड़का कहता है, मुझे उसको देखना है और सुनना है. फिर से कहा उसने, ये मेरे लाइफ टाइम का चांस है. और फिर वो खांसने लगा और सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो गई उसको. ही बिगैन टू कफ एंड गैस्प फॉर ब्रेथ एंड हैड टू बी गिवन ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर. तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि उसकी बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, कोई साधारण सी बीमारी नहीं थी. उसको ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ा. ऑक्सीजन सिलेंडर था उसका, उससे उसको ऑक्सीजन देना पड़ा. दैट स्टूड अंडर द बेड, बेड के नीचे था वो. बट हिज लार्ज आइज वर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर, बट वो आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी बहन को देख रहा था. नेक्स्ट पेज. स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच. आई एम सॉरी. तो उनकी बहन का नाम क्या था, स्मिता. अभी तक हमको भाई का नाम नहीं पता चला है, बट वी विल कम टू नो. इन सेल्फ रिप्रोच.
तो स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच मतलब डिसअपॉइंटमेंट में उसने अपना लिप को बाइट किया. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. वो इतनी excited थी वो announcement को देख के कि वो भूल गई थी कि उसका भाई बीमार था. भूल ही गई थी वो. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. वो समय भूल गई थी जब डॉक्टरों ने बहुत सीरियसली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, शब्द कहे थे. shook their heads gravely and spoke words, और कुछ शब्द उन्होंने कहे जो ना उनके मम्मी पापा समझे ना वो खुद समझी. spoken words that neither I'm sorry for this spoken words that neither she nor even her parents could understand. बट कहीं तो अंदर ही अंदर स्मिता को एक डरावना सच पता था. समवेयर इनसाइड, डीप इनसाइड, स्मिता न्यू द फ्राइटनिंग ट्रूथ दैट अनंत वॉज गोइंग टू डाई. तो फाइनली भाई का नाम हमको पता चल गया इस चैप्टर में. उसके भाई का नाम था अनंत, बहन का नाम था स्मिता. तो उसको ये पता था, डॉक्टरों ने कुछ कहा था टेक्निकल लैंग्वेज में, अपने डॉक्टरी लैंग्वेज में, बट उसको समझ नहीं आया था, ना ही उसके पेरेंट्स को समझ आया था. बट अंदर ही अंदर स्मिता को इतना पता था कि अनंत जल्द ही मरने वाला था. द वर्ड कैंसर हैड हंग इन द एयर. तो कैंसर था उनके भाई को. हर ब्रदर वॉज डाइंग ऑफ कैंसर even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. But उसको विश्वास था और वो she pretended that all would be well. अब जो मरने वाला है कुछ दिनों में, उसके सामने हम उसको और दुख नहीं देना चाहिए, हम उसको खुश रखना चाहिए. तो उसके सामने सब ऐसे बिहेव करते थे कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, फिर हम चारों एक साथ गगनपुर चले जाएंगे. ये लोग कहाँ रह रहे थे अभी? बॉम्बे. वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे थे. प्रिटेंडेड. एंड ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल एंड द फास्टेस्ट रनर. तो ये सिर्फ 15 साल का था और ये कितने साल की थी? हमने यहाँ पढ़ा 16 ईयर्स की थी. स्मिता 16 ईयर्स की थी एंड अनंत वॉज 15 ईयर्स ओल्ड. और सबसे अच्छे टेबल टेनिस प्लेयर था स्कूल में और सबसे फास्ट दौड़ता था. ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार. वो सितार बजाना सीख रहा था और दोनों सितार लेसन्स लेते थे. कोई सर आते होंगे या टीचर सितार सिखाते थे. बट अनंत वॉज बेटर देन हर इन मैनी अदर थिंग्स. बट अनंत और अच्छे थे दूसरी चीज़ों में भी, स्मिता से अच्छे थे. ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कंपोज हिज ओन ट्यून्स. तो सितार प्लेइंग में बहुत सारे लेवल्स होते हैं. पहले आइडेंटिफाई करना कौन सी ट्यून है, कैसे बजाते हैं, कौन सा राग है. तो स्मिता सिर्फ अभी सीख ही रही थी, बट अनंत ने बहुत अच्छा सीख लिया था कि वो अपनी खुद की ट्यून्स कंपोज कर सकते थे. टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ द गुरु. एस्टॉनिशमेंट मीन्स सरप्राइज. Then cancer had struck and they had to come to Bombay so that he could be treated. फिर उसको कैंसर हो गया और उसे बॉम्बे आना पड़ा. They had to come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. तो गगनपुर में हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे कैंसर के, तो वो बॉम्बे आए ट्रीटमेंट के लिए. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. अभी कौन सी आंटी के साथ रहते थे? आंट सुशीला. उनके घर में बड़ा घर नहीं था, बट हमेशा इस फैमिली के लिए जगह थी. There was always room for them. मतलब हमारे कोई एक रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना कि हम कभी भी उनसे मिलने चले जाएं तो हमको कभी मना नहीं करेंगे. उनके घर में हम हमेशा जगह होती थी. हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग. उनका घर बड़ा नहीं था, बट देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल्स
ऑफ मॉडर्न साइंस। अभी जैसे कैंसर, मॉडर्न साइंस आजकल कहता है कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो उस होप्स में, उस इच्छाओं में आए थे कि उससे अनंत ठीक हो जाएगा। मिरेकल्स मीन्स जादू। They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. तो उन्होंने अपने आप को वो विश्वास दिलाया था कि अनंत ठीक होगा। सोचो अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हो तो, और पता है वो चले जाने वाला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बट आप जादू पे, भगवान पे, मिरेकल्स पे विश्वास रखोगे कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं मन में पॉजिटिविटी रखोगे, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं हम सब वापस साथ में रहेंगे। ऐसे ही उन्होंने भी किया। एंड ही वुड प्ले द सितार परहैप्स विथ अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे। सितार जो प्ले करते हैं उसको सितारिस्ट कहते हैं। तो और उनको विश्वास था कि एक दिन वो किसी बड़े सितारिस्ट के साथ प्ले करेगा सितार। बट हिज कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे एंड द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड टेक हिम होम। फाइनली उसकी कंडीशन बुरी होने लग गई और डॉक्टरों ने कहा इसको घर ले जाओ। गिव हिम द थिंग्स ही लाइक्स, इंडल्ज हिम मतलब उसको अलाउ करो, द प्लेजर ऑफ समथिंग, टू अलाउ टू एन्जॉय, उसको जो अच्छा लगता है वो करने दो। तो डॉक्टरों ने कहा टेक हिम होम, और उनसे कहा कि उसको जो अच्छा लगता है करने दो, गिव हिम दैट ही लाइक्स। एंड दे न्यू दैट द बॉय हैड नॉट मैनी डेज टू लिव, और फिर वो समझे कि नहीं अब तो ये नहीं रह पाएगा बहुत दिनों के लिए। बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, बट उन्होंने कभी अपना ये डर अनंत के सामने नहीं दिखाया। वो हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे, और अनंत को जो भी अच्छा लगता था हमेशा उसको वो देते थे। दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड एंड गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर। उसकी हर ज़रूरत पूरी करते थे और जो चाहिए था उसे वो देते थे। दिस इज़ अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और अब वो क्या बोल रहा था, ये मेरे जीवन का एक चांस है, मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है। When you are better, his mother said, जब तुम ठीक हो जाओगे थोड़ा। This is not the last time they are going to play, कि वो फिर से कभी तो प्ले करेंगे ना, नॉट खेलेंगे, प्ले करेंगे ना। स्मिता stood at the window looking at the traffic with her eyes wet with tears। तो उसकी बहन रोने लगी थी, वो खिड़की की तरफ जाके खड़ी हो गई। क्या देख रही थी वो? ट्रैफिक देख रही थी। Looking at the traffic. Her mother whispered means धीरे से कहा, बट यू स्मिता यू मस्ट गो। फिर वो धीरे से गई, बट तुम चली जाना स्मिता, पापा तुमको ले जाएंगे। When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice। तो जब वो आंट के साथ थी अकेले में तो उसने कहा नहीं मैं कैसे जाऊँगी। चोक्ड वॉइस मीन्स जब हम रोते हैं तो हम कैसे अटक अटक के बात करते हैं, चोक्ड, वैसे चोक हो जाना आवाज़। We've always done things together, अनंत एंड आई। मैंने और अनंत ने हमेशा चीज़ें साथ में की है, तो मैं कैसे जाऊँ अभी। A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion। तो आंट सुशीला ने कहा जाओ गार्डन में चल के आओ, एक पार्क में वॉक करके आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। In the park, people were walking, running, playing ball, doing yoga exercises, feeding the ducks and eating. Okay, so for now we are going to stop at 1:39. We have finished 19 minutes 17 seconds and we will continue the rest of the chapter in the next video. For homework, what I want you to do is I'm going to mark the difficult words in red. I want you to find out the meanings and make sentences with these words. Also, I want you to answer the questions given on the side of each page. So this is page 138, this is 139. Can you see this paragraph where there is one question, 139, and this is page 140. Oh, this is also continuity of 139. I'm sorry. So
I'm marking the difficult words on this page with a red highlighter. You see, the first difficult word is maestro. Then the word is murmured. Some meanings are already in the textbook. Unbidden, uttered, gasp, sprang. You will write the word, you will write the meaning 2 times in your notebook and makes one sentence based on the word. Then self-reproach, gravely, frightening, pretended, astonishment, compose, struck. And you will answer the questions of the side. One question here, one question here. One question here. There's a meaning of indulge. Mark the word indulge also. Did I miss out on this page? Yeah. From this page, miracles, indulge, choked, whispered, this question, and 2 questions on this page. Okay, see you later.